السلام علیکم ناظرین، جرم کی ہزاروں عبرتناک داستانوں میں چند ایسی لرزہ خیز کہانیاں بھی ہوتی ہیں جو ایک باشعور انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ ایسی ہی چند خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمیرہ سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں جرم کا حل۔ پولیس وردی کا ناجائز استعمال کرنے کے بڑھتے واقعات نے محکمے میں احتساب کے عمل سمیت کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن بننے لگے ہیں۔ کبھی اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ، کبھی انسداد تجاوزات سیل تو کبھی آپریشن پولیس۔ قانون شکنی میں کوئی پیچھے نہیں ہے۔ آج قانون کے رکھوالوں نے ہی قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ ایسا ہی ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا ملتان کے نواحی علاقے میں، جہاں قانون کے محافظ ہی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ ملتان میں قانون کے محافظ ہی شہریوں کی جان لینے لگے۔ تھانہ شاہ رکن عالم پولیس جلاد بن گئی۔ پولیس نے عید کے ایام میں اندھا دھند فائرنگ کر کے 3 شہریوں کو قتل کر دیا۔ عید کی خوشیاں کب ماتم میں تبدیل ہوں گی اس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ہر گھر میں جیسے عید کی تیاریاں کی جاتی ہیں ویسے ہی سمیع اللہ، عثمان اور عرفان کے گھر بھی کی گئی۔ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد تینوں افراد خوشی خوشی گھر واپس آئے تاکہ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ منا سکیں۔ تینوں نے واپس آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور شام کو گھر والوں کے ساتھ کہیں باہر جا کر انجوائے کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی سبب وہ سب آرام کرنے لگے تاکہ شام کو جلدی نکل سکیں، مگر جب موت آپ کے مقدر میں ہو تو پھر اسے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ تینوں دوست شام کو تیار ہو کر گھر سے نکلے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ شاید یہ عید ان کی آخری عید تھی۔ تینوں دوست گھر سے نکل کر سڑک پر پہنچے تھے جہاں عید الفطر کے ایام میں تھانہ شاہ رکن موبائل پولیس جناح پارک کے قریب ناکے پر موجود تھی۔ 3 موٹر سائیکل وہاں سے گزر رہے تھے کہ پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان نہ رکے۔ موبائل پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کا تعاقب کیا اور بغیر کسی تحقیق کے فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 نوجوان سمیع اللہ اور عثمان جہاں باک ہو گئے۔ ہمارا بچہ جس کا نام سید سمیع اللہ بخاری تھا، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے، 24 سال کی عمر تھی۔ گھر میں ایمیزون کا کام کرتا تھا۔ ماشاءاللہ بڑا اچھا بچہ تھا، فرما بردار تھا۔ 10 دن اعتکاف پر بیٹھا، بہت نیک بچہ تھا ماشاءاللہ، بڑے اچھے اعمال کیے اور اعمال میں اچھا وقت گزارا۔ عید کا دن پورا ہم نے اپنی اماں جان کے گھر میں دعوت میں اکٹھے ہی گزارا، سب نے، ساری بھائیوں نے اور ان کی یعنی آگے بچوں نے۔ تو الحمدللہ بڑا اچھا وقت گزرا، سارا دن ہمارا خوشی خوشی ہم رہے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے۔ اس نے ماشاءاللہ اپنی دادی اماں کو اپنے عزائم بتائے کہ میں اعتکاف سے اٹھ کے آیا ہوں، میرے یہ عزائم ہیں، انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں وقت لگاؤں گا اور انشاءاللہ نیک نامی کے ساتھ باقی انشاءاللہ زندگی اب گزاروں گا۔ پولیس نے تلاشی لی تو موٹر سائیکل سواروں سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا۔ عینی شاہد عرفان کے مطابق پولیس نے موقع پر ڈرامہ شروع کر دیا کہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے 2 نوجوان ہلاک ہوئے ہیں۔ اس وقت علاقہ وکیلوں نے پولیس کو کہا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گولی کانسٹیبل نے چلائی ہے۔ پولیس اہلکار فائرنگ کر کے ڈرائیور سمیت وقوع سے فرار ہو گئے۔ جتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے اور جس ظلم کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا ہے اور جتنا اس کا خون بہا ہے، اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، انشاءاللہ اللہ نے بھی اس کو معاف کر دیا ہوگا۔ تو ہم اللہ کی ذات سے امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو اس کی تکلیف کی برکت سے، شہادت کی وجہ سے ان کو ان کے رفع درجات فرمائیں گے اور ان کی انشاءاللہ کامل بخشش فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کے بچوں کو محفوظ رکھے اور ایسے درندوں کے ہاتھوں جیسے ہمارا بچہ شہید ہوا، خدا سب کے بچوں کو محفوظ رکھے اور سب کو نیک بنائے۔ فرار ہونے والے پولیس اہلکاروں کی شناخت یاسر ASI، کانسٹیبل بلال، شبیر اور ڈرائیور جاوید کے نام سے ہوئی۔ تھانہ شاہ رکن عالم میں جہاں باک سمیع اللہ کے والد سعد اللہ کی مدعیت میں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ FIR میں قتل اور اقدام قتل کی دفعات شامل کی گئی۔ پولیس نے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے FIR میں ملازمین کو نامزد نہیں کیا۔ قتل ہونے والے سمیع اللہ اور عثمان کے ورثاء نے تھانہ کے سامنے میتیں رکھ کر احتجاجی مظاہرہ کرتے رہے، لیکن کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ ورثاء کا کہنا تھا کہ پولیس نے ہمارے بیٹوں کو ناحق قتل کیا ہے۔ پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر سکی۔
वरसा ने मुतालबा किया कि उनके मासूम बच्चों के कातिलों को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए, मगर उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। पुलिस अपने पेटी भाइयों को पकड़ने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। इस मौके पर थाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरीन से एसपी गुलगश्त बाबर जवाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें आपके दुख का एहसास है। उन्होंने मजीद बताया कि मुल्जिमान के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनका कहना था कि आप लोग हमें 6 से 7 घंटे का वक्त दें, हम मुल्जिमान को पकड़ लेंगे। एसपी ने वरसा को यकीन दहानी करवाई कि वो मुल्जिमान की गिरफ्तारी तक सुकून से नहीं बैठेंगे। पुलिस की यकीन दहानी पर वरसा ने एहतजाज खत्म कर दिया और थाने से वापस चले गए, लेकिन पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस एहलकार वरसा को तसल्ली देने के लिए मुल्जिमान के घरों की झूठी रेड की वीडियो जारी करते रहे। वक्त गुजरता गया, मुल्जिमान न पकड़े गए। पुलिस के बारे में तो यानी बहुत ही अल्फाज ही ऐसे नहीं है कि पुलिस कहने को दिल ही नहीं करता, चूँकि हमारी सरकार ने जो पुलिस को नाम दिया है वो मुहाफिज का नाम है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी यानी यूँ समझो कि पुलिस गर्दी है, दहशत गर्दी है कि जिसके ज़रिए उन्होंने ऐसे अंधाधुंध फायरिंग करके बच्चों को हलाक किया है और शहीद किया, उनको मासूम बच्चों की जानें ली हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह जल्ल शानू की ज़ात बड़ी जो है वो ज़बरदस्त ज़ात है और अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, ज़रूर बरसेगी इंशाअल्लाह। जिन्होंने ये जुल्म किया है अल्लाह पाक इंशाअल्लाह उनसे दुनिया में भी इसका इंतकाम लेंगे और आखिरत में भी वो इंशाअल्लाह इस खून बहा का इंतकाम देंगे। जब उस वाक़े का नोटिस निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लिया तो निगरान वज़ीर आला पंजाब ने मुल्तान में जहांबाग होने वाले नौजवान के घर लवाहिकीन से ताज़ियत के लिए दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब के आने से कुछ ही देर पहले पुलिस ने एक मुल्जिम कांस्टेबल बिलाल को गिरफ्तार कर लिया और एसएचओ थाना शाह रुकन आलम मुल्तान कुर्रतुल ऐन को मुअत्तल किया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नाम सुनते ही इंतजामिया और पुलिस ने लवाहिकीन से राब्ते शुरू कर दिए। वज़ीर आला पंजाब के साथ पुलिस और इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि पुलिस की फायरिंग का वाक़या काबिल मुज़म्मत है। 72 घंटे में दीगर 2 मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लेंगे। वाक़े के जिम्मेदारों को जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। दोनों खानदानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मजीद उनका कहना था कि निगरान हुकूमत अवामुन नास को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मुल्तान पुलिस ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए और अभी तक दूसरे मुल्जिमान गिरफ्तार ना हो सके। इलाके में सोग की फजा कायम है। लवाहिकीन इंसाफ की राह तक रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या पुलिस बाकी मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर सकेगी और क्या उन मुल्जिमान को करार वाकई सजा दिलवा सकेगी। हमारी यानी तमाम अफसरान बाला से भी 12 मरतबा हम ये बात पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि बहुत ही बड़ी दरिंदगी है और इस दरिंदगी से जो है वो इस पर काबू पाया जाए और ऐसे लोगों को जो लोग इस यानी फहरिस्त में शामिल हैं, जो इस पुलिस के अंदर इस तरह के लोग नाअहल लोग और ना तजर्बाकार और कोई थोड़ा सा भी सेंस ना रखने वाले लोग जो इस तरह के शामिल हैं और कोई इस तरह के लोग हैं जो मनशियात के साथ जिनका कई कुर्ब जवार में ताल्लुक़ है, ऐसे लोगों को पुलिस की फहरिस्त से निकाला जाए ताकि ये हमारा महकमा पाकीज़ा तौर पर लोगों का सही मुहाफ़िज़ बन सके। जिस चीज़ की सरकार इनको तनख्वाह दे रही है और जिस चीज़ का प्रोटोकॉल मिल रहा है वो चीज़ हलाल तरीके से इन तक पहुंच सके। और ये हमारी ये अफसरान बाला से तमाम से ये गुजारिश है और जो हमारे साथ होना था वो हो गया, लेकिन अब जो है इंशाअल्लाह हम इस को इंशाअल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे और इसके लिए हमारे साथ पुलिस का ताउन भी हम चाहते हैं, अफसरान बाला का भी ताउन चाहते हैं। ताउन हो रहा है, लेकिन जो हम जिस तरीके से ताउन चाहते हैं उस तरीके में थोड़ी सी ज़रा लचक है, तो हम ये चाहते हैं इसको भी पूरा किया जाए। तो एसपी, जो मैंने पहले बात अर्ज़ की कि एसपी साहब, एसएचओ साहब, एसपी साहब से भी रब्ता करें और उनसे पूछें कि कौन से नाम थे, रोज़नामचा हमारे हवाले किया जाए और हमें बताया जाए कि ये रोज़नामचा आपके हवाले है। अब आप बताएं कौन से नाम आपने देने हैं, तो वीडियोज़ और ये सारी चीज़ें जो शवाहिद हमें मिल रहे हैं, हम इंशाल्लाह उसके मुताबिक बिल्कुल इंशाल्लाह मेरिट के मुताबिक इंशाल्लाह उनको इंशाल्लाह नाम लिखवाएंगे। एसएचओ साहब रात आए थे, उन्होंने नाम मांगे थे, मैंने उनसे आज का टाइम मांगा है, उन्हें कहा कि आज इंशाल्लाह हम आपको नाम देंगे। पाकिस्तान में जंगल का कानून राइज हो चुका है, इसी वजह से कई मासूम अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं।
आखिर कौन उनकी दाद रसी करेगा, कौन बनेगा उनका मर्सिया, इसका शायद अब कोई जवाब नहीं है। हम आखिर कब तक इस जुल्म को खामोशी के साथ बर्दाश्त करते रहेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद देखेंगे जुर्म कहानी कराची से, जहां मासूम बच्चों को अगवा करने वालों के बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो देखते रहिए ABN, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। अखबारात कराची के जराइम की खबरों से भरे नजर आते हैं। हर महीने शहर में हजारों मोटरसाइकिलें चोरी होती हैं। आए दिन डाकू शहरियों को बंदूक का निशाना बनाते हैं। सरकारी अदादोशुमार बताते हैं कि मोबाइल चोरी के वाकयात 10% बढ़े हैं और मोटरसाइकिलों की चोरी की वारदातें 7% तक बढ़ी हैं। हालांकि इस शहर का जराइम से पुराना नाता है। इस खबर में सच्चाई कितनी है, इस सवाल पर गुफ्तगू हो सकती है, मगर अदादोशुमार बताते हैं कि कराची इन शहरों में से एक है जहां जराइम ज्यादा होते हैं। कराची अक्सर जराइम के लिए सुर्खियों में रहा है। कत्ल, डकैती, रेप यहाँ का रोजमर्रा का मामूल है। टारगेट किलिंग शहर के लिए कोई अजनबी बात नहीं और मसलक और मजहब, जबान और नस्ल की बुनियाद पर दंगे इस शहर के मामूलात में शामिल है। हत्याखोरी पहले पुलिस वालों की शिनाख्त हुआ करती थी, मगर अब सियासी और मजहबी जमातें भी ये काम करती हैं। पहले डाकू, मंशियात फरोश और पेशावर कातिल लोगों की जानें लेते थे, मगर अब बदमाश और साहिबाने जबाव दस्तार भी ये काम अपने शागिर्दों से कराते हैं। कराची पुलिस आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय खुद जराइम पेशा अनासर के साथ मिलकर ऐसे संगीन जराइम में मुलव्विस हो चुकी है कि जिसको सुनकर इंसान दंग रह जाए। मुल्क के माशी मरकज और सबसे बड़े शहर कराची में बच्चों के लापता होने के पै दर पै वाकयात ने खौफ की लहर पैदा कर दी है। मुल्जिमान बच्चों को अगवा करने के बाद उनके घर वालों से तावान का मुतालबा करते हैं। कई कहानियों में ये भी सुनने को मिलता है कि दुश्मनी में नन्हे मासूम बच्चों को अगवा कर लिया जाता है ताकि इंतकाम लिया जा सके, और अक्सर लोग इंतकाम की आग में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि वो किसी का खून करने से भी नहीं कतराते। एक के बाद एक और भयानक जुर्म की दास्तान सुनने को मिलती है कि जिसे सुनकर इंसान दंग रह जाता है। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या पेश आया मलीर में, जहां थाना शाह लतीफ पर AVCC पुलिस ने छापा मारकर अगवा बराए तावान के लिए 2 नौजवान बाजियाब करवा लिए। AVCC के SSP अब्दुल रहीम, DSP मुमताज मगसी ने ABN न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 नौजवानों को अगवा करने के बाद फोन पर वरसा से 50 लाख तावान तलब किया गया, जिसकी इत्तला AVCC पुलिस को दी गई। AVCC पुलिस ने जदीद बुनियादों पर टेक्निकल हिकमत अमली तश्कील देकर मगवियों की तलाश शुरू कर दी। अगवाकारों ने गुज़श्ता रात मगवी के वरसा को कायदाबाद बुलाया और बाद में शाह लतीफ के इलाके में आने का कहा। इस दौरान मगवी के वरसा स्पेशल यूनिट से राब्ते में थे, जिसके बाद वरसा ने तावान की रकम अगवाकारों की दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा दी। जैसे ही मुल्जिमान ने तावान की रकम वसूल की, उसी वक्त AVCC पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने अपनी शिनाख्त करवाते हुए कहा कि हम पुलिस एहलकार हैं और शाह लतीफ थाने की स्पेशल टीम चलाते हैं। गिरफ्तार एहलकारों की निशानदेही पर थाने के कमरे में कैद 2 नौजवानों को बाजियाब करवा लिया गया। दूसरी जानिब वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP मलीर शाह लतीफ थाने के बाअसर SHO मलिक मजहर को मुअत्तल कर दिया। क्या एक शख्स अपनी हदूद को क्रॉस करते हुए अपने फराइज और जिम्मेदारियों को पसे पुश डालते हुए जलाद और कसाब बनकर इंसानों को बेरहमी से मारेगा और तशद्दुद करेगा, तो क्या उस पर किसी कानून का इतलाक नहीं होगा? इस शोबे की निगरानी आखिर किसके सुपुर्द है? इनको इनके मजालिब से हाथ रोकने वाला क्या कोई हाथ नहीं है? इनको इनके असल फराइज से आशना करने वाली कोई टीम, कोई सरबराह है जो इनके असल फराइज से इनको आगाह करता रहे? अगर कोई है तो पोशीदा क्यों है? हम आप सबको नजर क्यों नहीं आता? जब कानून के मुहाफिज ही कानून अपने हाथों में ले तो गरीब किससे इंसाफ मांगे, किससे इल्तिजा करे और किसके आगे हाथ फैलाए? से आपको पुलिस ने उठाया था? ज़करिया गुट से, बाजार से। आप मंशियात फरोश हैं? नहीं सर। कैसे उठाया था? लोग तो कह रहे मंशियात फरोश। नहीं सर, हम सब्जी उठा रहे थे, बस मोबाइल है उसमें बिठा दिया, वो नहीं है रूम में ले से डाला, फिर इधर लेकर आया। हमें पता चला है कि जिन्होंने आपको उठाया था उनके साथ आप चर्च भी थे। नहीं सर,
बिल्कुल उनमें से नहीं। कोई आपका जानने वाला है? नहीं सर, ऐसे ही उठा लिया? ऐसे उठा लिया। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि चोर हो आप, वो क्या कहते हैं, ब्लड भी न मारा जी, जी। पिस्टल भी न मारा, मशीन भी मारा, कहाँ डरा पर दिया। आपको लेके गए थे? रात को कहीं लेके गए थे? नहीं नहीं, शाम को न टाइम, ऐसे न टाइम में लेकर न गया था। इधर एक सोसाइटी बन रही है, ग्राउंड पर उन्होंने लेकर सुन गया रहे था। हैं कि आपको इनकाउंटर कर रहे थे, गोली जी मार सर, रहे जी थे। सर, जी सर, ये क्यों सच है। गोली मार रहे थे? बस सर, बोला था कि आपने चोर हो, ऐसे इंजाम लगा रहे थे। 20 लाख रुपए न मांग रहा था हमसे। ज़राए के मुताबिक SHO समेत 3 अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि साबिका SHO मलिक मजहर थाने में केस दर्ज होने से कबल थाने से फरार हो गया। जब AVCC ने तहकीकात की तो उन्हें मालूम हुआ कि इस केस में बहुत से पुलिस अहलकार शामिल हैं, जिसके बाद जिला मलीर की पुलिस में खलबली मच गई। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि SHO की जानिब से तश्कील दी गई स्पेशल पार्टी ऑर्गेनाइज क्राइम करवाने में मुलविस होते हैं, जिसके बायस इलाके में जराइम की शरह बढ़ जाती है। मलीर के समाजी शख्सियात ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से अपील की कि मलीर के मुख्तलिफ थानों पर SHO और DSP की जानिब से पुलिस की स्पेशल टीमों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पुलिस की स्पेशल टीम में पुलिस अहलकार के साथ प्राइवेट लोग और पेशावर मुजरिमान भी शामिल होते हैं, जिनके खिलाफ आला सतह पर तफ्तीश करवाई जाए। वाज़ेह रहे कि कराची में इससे कबल भी इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, जिसमें पुलिस अहलकारों की जानिब से अगवा करके मगवियों को थाने की छत पर रखा गया। मगवियों को AVCC पुलिस ने बाजियाब करवा लिया, जिसके बाद मलीर के शाह लतीफ थाने पर भी ऐसा वाक़या पेश आया, जिसमें पुलिस अहलकारों ने मगवियों को थाने के कमरे में बंद करके रखा था। मलीर पुलिस ने यह मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े में मुलविस किसी भी अफसर को रियायत नहीं दी जाएगी और तमाम मुल्ज़िमान को पूरी तफ्तीश के बाद करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। मेरे होते हुए ये पहले ही वाक़या है। आपकी आपसे पहले भी एक आपसे हुआ पहले है। भी एक यहाँ किसी मेरे थाने- नॉलेज में नहीं है। यूं तो कानून सबके लिए यकसा है, खा वो कोई भी महकमा हो, लेकिन सितम यह है कि पाकिस्तान में खुसूसन कानून की नजर में सब हरगिज बराबर नहीं है। यहाँ सिर्फ ताकतवर का सिक्का चलता है। पुलिस खुद को ही कानून कहती है और समझती भी है। उनकी नजर में उनके बनाए हुए उसूल ही आवाम पर लागू होते हैं और वो खुद भी उनसे बालातर हैं। अगर कानून के निगरान खुद ही कानून को हाथ में ले लें तो उन्हें कौन रोकेगा। कहाँ रहते हो आप? मैं कैंप पे, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, क्यों पुलिस ने पकड़ा था आपको? ऐसे ही पकड़ा था। क्या कह रही थी पुलिस? वो कह रहा था कि हमें 20 लाख रुपए चाहिए। क्यों? पता नहीं। आपकी कोई उनसे जान पहचान थी? नहीं मंशियात वगैरह बेचते नहीं हो? नहीं। फिर क्यों पकड़ा था? ऐसे पूरी कराची में लोग घूम हम रहे उधर थे। अफ्तारी के लिए चीज़ें लेके जा रहे थे। हमने दही उठाया तो पुलिस पीछे खड़ी थी। उसने कहा है कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला अरमान। इसने भी नाम पूछे। उसने डायरेक्ट कहा कि गाड़ी में बैठो। फिर आपको कहीं फोन वोन करवाया उन्होंने? मैं कि उस अपने वालिदैन को फोन करो, पैसे दें या क्या? जी, किसको आपने फोन किया? मेरा माँ को फ़ोन लगाया। उसने कहा कि उसको बोले 20 लाख रुपए लेके आए। अच्छा, कितने दिन से आपको उठाया था? कितने दिन हुए? एक दिन हुआ है, एक कल दिन? 4 बजे पकड़ा हुआ था। अच्छा, आपको कहीं लेके गए थे? एनकाउंटर कर रहे थे क्या? गोली गोली मार रहे थे? उधर एक सोसाइटी बन रही, उधर मेरे को उतारा गाड़ी से। ये गाड़ी में था और मेरे को ऐसे लेटाया उल्टा, मेरे को डंडे हमारे पीछे। हाँ, गोली भी आपके ऊपर तानी, बंदूक तानी उसके? वो क्या कहते हैं उसको, ब्लोट मारे मेरे ऊपर। बट मारे आप? जी, क्या कहा? बस ऐसे वो कह रहे थे कि आप चोर हो, ये वो इल्ज़ाम लगा रहा था। मैंने फिर माँ को फ़ोन किया, उसने 3 लाख रुपए पे बात डन किए, बस हो गए। फिर ये छापा जो लगा वो कैसे लगा? हाँ, छापा जो लगा था रात को, पुलिस आई थी ना, हाँ। दूसरी शहर की पुलिस आई थी। वो तो एक ताने पे घूम गया था। हम लोग तो इसने तो हमको चुराया था। इधर बस चुप के बैठा हुआ था, लोकेशन पे आ गया था। ज़ैनब अलर्ट बिल में पुलिस को इस बात का पाबंद बनाया गया कि किसी बच्चे की गुमशुदगी या अगवा के वाक़े की रिपोर्ट के 2 घंटों के अंदर उसका मुकदमा दर्ज किया जाए। बिलखसूस बच्चियों का अगवा ऐसा जुर्म है जो कि मुआशरती अलमिये को जन्म देने के बाइस बन सकता है। किसी माँ का लख्ते जिगर गुम हो जाए, उसकी हालत एक जिंदा लाश की मानद होती है। मुग़वी बच्चे के वालिदैन जीते जी मर जाते हैं। हुकूमत क्यों इस मामले को संजीदगी से नहीं देख रही? ऐसे संगीन मसाइल के हल के लिए
शहरियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों, सिविल सोसाइटी, सबको मिलजुल कर कोशिशें करना होंगी। नाज़रीन, जरूरत इस अमर की है कि जो गिरोह या अनासिर बच्चों के अगवा की घिनौनी वारदातों में मुलव्विस हैं, उनकी गिरफ्तारियों को यकीनी बनाया जाए और उनको कानून के कटहरे में लाया जाए ताकि खौफ हिरास खत्म किया जा सके। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, तो देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि जुर्म कहानी अभी बाकी है। शादी का रिश्ता मोहब्बत के बाद वजूद में आए या उसे दो घर मिलकर तय करें, ऐसा रिश्ता होता है जो बाहिमी एतबार के साथ ही चलता है। और असल बात ये होती है कि इस रिश्ते का एहतराम कैसे किया जाए। समझदार लोगों का तो कहना है कि रिश्तों की खूबसूरती इंसान के खूबसूरत रवैये से ही कायम दायम है। हर इंसान अपनी आदत पर ना सही, अगर अपने रवैये पर ही काबू रखे और उसे हालात के मुताबिक ढालने का ढंग सीख ले, तो शादी के बाद घर का माहौल जन्नत में तब्दील हो सकता है। मगर इस जन्नत को जहन्नुम बनते हुए उस वक्त देर नहीं लगती एक साथ रहने वाले माँ, बाप, बहन, भाई या मियाँ बीवी या इस बात का अंदाजा लगाने में नाकाम हो जाए कि उनके रवैये से दूसरों की जिंदगी पर कितने खराब असरात मुरतब होते हैं। ऐसे रिश्ते जो अचानक या हादसाती तौर पर वजूद में आते हैं, उनके टूटने में भी देर नहीं लगती। मगर इससे भी अफसोसनाक बात तब सामने आती है जब इस टूट फूट के साथ बहुत सारी जिंदगियां भी दांव पर लग जाती हैं। किसी भी इंसान के लिए अपनी पसंद के जीवन साथी का इंतखाब करना उसका बुनियादी हक है, लेकिन अगर हम पिछले 2 या 3 दहाइयों में मोहब्बत की शादी करने वालों के दादो शुमार इकट्ठे करें तो खौफनाक हकाइक सामने आते हैं, जिनके मुताबिक मोहब्बत की ये शादियां ज्यादातर न सिर्फ नाकाम हुई बल्कि अपने साथ हजारों घरानों को भी बर्बाद कर गईं। जहां कई लड़की वालों ने गैरत के नाम पर लड़के, लड़की या दोनों को कत्ल कर दिया और ये दुश्मनी अक्सर खानदानी दुश्मनी में बदल गई या कातिल जेल की सलाखों के पीछे चला गया और अहले खाना मुकदमा बाजी में जलीलो ख्वार होकर रह गए। थाना सदर वाह की हुदूद में गैरत के नाम पर कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात पेश आई। शौहर ने अपनी 9 बेहाता बीवी और उसकी आशना को गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इरफानुल्लाह की शादी चंद रोज कबल रहीमा दुख्तर हबीबुल्लाह साकिन केपी से हुई। इरफान अपनी बीवी के साथ ग्रीन टाउन में किराए के मकान में मुकीम था। जब 2 लोग निकाह के मुकद्दस बंधन में बंध जाएं तो उन पर यह लाजिम हो जाता है कि एक दूसरे का एहतराम करें और एक दूसरे का एतबार न तोड़ें। लेकिन जब दोनों में से कोई भी ऐसी हरकत करता है जिससे दूसरे के एतबार को ठेस पहुंचता है तो नतीजा घराने के तबाही के सिवा कुछ नहीं होता। इरफान और राहिमा का निकाह हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, लेकिन राहिमा अपने दूसरे कजन को पसंद करती थी। शादी के कुछ रोज बाद राहिमा का वही कजन, जिसका नाम इरशाद खान है, पेशावर से उनके घर पर मिलने आता है। इरशाद खान कुछ रोज उनके घर पर रुकने के लिए आता है। एक रोज जब इरफान मामूल के मुताबिक घर से नौकरी के लिए निकला, आज इरफान नौकरी से जल्द फारिग होकर घर वापस आता है, लेकिन शायद उसके वहमो गुमान में भी न था कि जब वो घर जाएगा तो एक भयानक हकीकत पर से पर्दाफाश हो जाएगा। इरफान घर का दरवाजा खोलकर दाखिल होता है। जब कमरे में दाखिल होता है तो इसने इरशाद और अपनी बीवी को इकट्ठा देखा और ये मंजर देख के वो तैश में आ गया। इरफान ने तैश में आकर अपनी बीवी और उसके आशना को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल करने की वजह कोई भी हो, मगर ना कानून में ऐसी कोई गुंजाइश मौजूद है न समाजी तौर पर कि किसी भी इंसान को उसके किसी गुनाह की पादाश में कत्ल किया जाए। अलमिया तो ये है कि तालीम और शऊर रखने वाले बहुत से घराने ऐसे भी हैं जो इस फरसूदा रस्म को मायूब नहीं समझते। कुछ लोग गुनाह का सबूत हासिल किए बगैर मुआशरे में अपनी इज्जत बचाने के लिए तो कुछ मुआशरे की लान तान के आगे मजबूर होकर अपने घर की औरतों को रवायात की भेंट चढ़ा देते हैं। इस सारी सूरत हाल का अफसोसनाक पहलू ये है कि ऐसे किसी इल्जाम की तहकीक की जरूरत ही नहीं समझी जाती। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल टेक्सला में मुंतकिल किया। मुलजिम इरफान ने कत्ल की वारदात के बाद खुद को आलाए कत्ल समेत पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सदर वाह पुलिस ने मुलजिम इरफानुल्लाह वल्द अमानुल्लाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा से ग्रीन टाउन वाह कैंट मुंतकिल हुए थे।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्सा के आबाई गांव रवाना कर दी। पुलिस ने कहा मुलजिम ने अपनी बीवी और उसके आशना को गैरत के नाम पर मौत के घाट उतारा। नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि इज्जत के नाम पर जराइम औरतों के बारे में मनफी रवैयों के अलावा बुनियादी तौर पर इसलिए जारी है कि इस सिलसिले में मौसर कवानीन मौजूद नहीं है और जो कवानीन मौजूद हैं उन्हें सही तरह नाफिज नहीं किया जाता। वालिदैन अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमेशा कोशां रहते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वे अपनी औलाद को खुश रख सकें, मगर वही औलाद जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती है और वालिदैन को मजबूर कर देती है कि उन्होंने अब शादी करनी है और शादी वो अपनी मर्ज़ी से करेंगे, उसमें वालिदैन का अमल दखल नहीं होगा। वालिदैन कोशिश ज़रूर करते हैं कि ऐसी जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ से उसका मुस्तकबिल अच्छा हो, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि वालिदैन बच्चों की ज़िद के आगे सर झुका देते हैं। और ऐसा ही एक वाक़या जो है टेक्सला में पेश आता है कि टेक्सला में इरफान उल्लाह अपनी एक अजीज़ा उसके साथ शादी करता है और शादी हुए चंद दिन ही गुजरते हैं कि उसका एक कज़न उनके यहाँ आता है और पता चलता है कि वो कज़न उसकी बीवी के साथ उसका पहले से कोई रब्ता था। वो मामूल के मुताबिक घर से किसी काम के लिए निकलता है, जैसे वापस आता है तो उन दोनों को काबिल एतराज़ हालत में देखता है और तैश में आके फायरिंग करके दोनों को कत्ल कर देता है। अब यहाँ पे देखना यह है कि उसने तैश में आके दोनों को कत्ल कर दिया। काश अगर पेरेंट्स जो हैं उनकी बात को मान लिया जाता, उनकी मर्ज़ी से शादी हो जाती, क्योंकि पसंद की शादियाँ अक्सर व बेशतर नाकाम होती हैं। बच्चे जज्बाती होकर फ़ैसला तो कर लेते हैं लेकिन उनके वो फ़ैसले कामयाब नहीं होते और उससे कीमती जानें भी ज़ाया हो जाती हैं। अब वो दो तो चले गए, कत्ल करने वाला क्या उसको सज़ा मिलती है या नहीं मिलती, ये पुलिस की तहकीकात और उनकी इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन पे जाएगा कि क्या मुल्ज़म सलाखों के पीछे जाके बरी होकर फिर आ जाएगा या उसको भी तख्तादार पर लटकाया जाएगा। गैरत के नाम पर कत्ल करने का दस्तूर बहुत कदीम है। 21वीं सदी में इस तरह के जालमाना रस्म व रिवाज का कोई जवाब नहीं है और ये हमारे आज के मुअज़्ज़ब मुआशरे पर एक स्याह दाग है। कानून और अदालतों की मौजूदगी में लोगों का खुद ही अदालत लगाकर खुद ही फैसला कर देना और फिर घर के लोग खुद ही उस फैसले पर अमल दरामद भी कर देते हैं, जो कि इंसाफ के मुरवज्जा तकाज़ों की तौहीन है। इससे मुआशरे में लाकानूनियत का रुझान बढ़ता है। ये सब जानने के बाद भी कत्ल की सज़ा क्या है जब लोग इस तरह के घिनौने जुर्म करते हैं तो हैरत होती है कि सिर्फ अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए लोग संगीन जुर्म करने से भी नहीं कतराते। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक ब्रेक। वालिदैन अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फ़र्ज समझते हैं। घर में अगर बेटी हो तो माँ से बढ़कर बाप उससे मोहब्बत करता और शफकत से पेश आता है और कोशिश करता है कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाए। लेकिन जब शादी ब्याह का वक्त आता है तो बहुत सारे वालिदैन बच्चों की ख्वाहिशात का एहतराम नहीं करते, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। याद रहे कि रिवायती तौर पर हमारे मुआशरे में वालिदैन की मर्जी से बच्चों की शादी को अहमियत दी जाती है, मगर ये भी तो देखना चाहिए कि इन बच्चों की राय को कितनी अहमियत देने की जरूरत है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है और ये बात 100% दुरुस्त है। वाकई शादी गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। माँ बाप अपनी औलाद के लिए छानबीन कर रिश्ता तलाश करते हैं। घर बार, खानदान, रहन सहन समेत कई पहलुओं पर गौर और फिक्र के बाद शादी तय की जाती है और हमारे मुआशरे में इस तरह की शादियों को ज्यादातर पायदार तस्वुर किया जाता है। इसके बरक्स जब कोई लड़का या लड़की अपनी मनमानी करते हुए शादी कर ले, उसे लव मैरिज का नाम देते हैं तो हमारे मुआशरे में मुश्किल से ही कबूल किया जाता है। इंसान की खुदगर्जी और बेरा रवी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। इसकी मिसाल तो हमें रोज किसी न किसी दर्दनाक कहानी के जरिए मिल जाती है और इस इंकशाफ को कोई रद्द भी नहीं कर सकता। हमारे मुआशरे में औरत की मजलूमियत के इतने किस्से हैं कि अगर उनको लिखा जाए तो शायद सफ़े ख़त्म हो जाएं, लेकिन उन पर किए गए मजालिम ना ख़त्म हो सकें। कभी मोहब्बत तो कभी गैरत के नाम पर अपने ही खूनी रिश्तों और प्यारों के हाथों कत्ल होने वाली औरतों की फहरिस्त तवील हो चुकी है। ऐसा ही दिलखराश किस्सा मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाके में पेश आया, जिसको सुनने के बाद आप पर भी सख्ता तारी हो जाएगा। 2 साल पहले यामीन ने ज़हरा बीबी से मोहब्बत की शादी की और वो दोनों
خوشی خوشی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ دیکھنے میں تو سب ٹھیک نظر آ رہا تھا، مگر حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جوں وقت گزرتا گیا ان کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یامین نے اپنے گھر سے زیادہ وقت باہر گزارنا شروع کر دیا، اور جب وہ گھر میں موجود ہوتا بھی تو دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہی رہتا، اور یامین نے اپنی بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ زہرا ان سب باتوں کو پہل تو برداشت کرتی رہی، لیکن ایک انسان آخر کب تک چپ چاپ اپنے اوپر مظالم کو سہتا رہے گا؟ اور آہستہ آہستہ زہرا کی برداشت بھی ختم ہوتی گئی۔ زہرا کی ہمت بھی جواب دے چکی تھی، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ یامین کے ظلم کو چپ ہو کر نہیں برداشت کرے گی، بلکہ وہ اس پر اس کو جواب ضرور دے گی۔ ایک روز زہرا اپنے کاموں میں مصروف تھی کہ یامین گھر واپس آیا۔ زہرا نے اس کو کھانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا۔ زہرا پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ زہرا کو کام کے دوران یاد آیا کہ اس نے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، جس کے لیے اس کو چند پیسوں کی ضرورت تھی۔ اس نے یامین سے چیک اپ کے لیے پیسے مانگے، لیکن یامین اس کی مدد کرنے کے بجائے اس پر غصہ کرنے لگا۔ جب زہرا نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی تو یامین نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ زہرا نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی۔ زہرا نے اپنی ماں نسرین بی بی کو فون کیا اور اس نے کہا کہ اب وہ یامین کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے آپ مجھے آ کر لے جائیں۔ نسرین بی بی بھی آخر ماں تھی، وہ اپنی بیٹی کا دکھ برداشت نہ کر سکی اور زہرا کو اپنے ساتھ لے گئی۔ کچھ روز کے بعد زہرا اور اس کے گھر والوں نے یامین سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ یامین کو لگا تھا کہ شاید زہرا خود ہی واپس آ جائے گی، لیکن جب اس کی علیحدگی کی خبر ملی تب یامین کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی اور اس نے زہرا سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ یامین نے کبھی فون پر تو کبھی اس کے گھر جا کر بھی معافی مانگی، لیکن یامین زہرا کے ساتھ جو کچھ کر چکا تھا اس کے بعد زہرا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ کسی بھی صورت یامین کے ساتھ نہیں رہے گی۔ یامین اس بات کو اتنی آسانی سے تو بھولنے والا نہیں تھا۔ یامین نے جب سب کوششیں کر لی تو پھر بھی زہرا نہ مانی تو اس نے طے کر لیا کہ اب وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ یامین نے منصوبہ بنایا کہ وہ زہرا کو اب زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جب کسی شخص کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر محسوسات ختم ہو جاتے ہیں تو انسانیت کا لبادہ اڑے ایسے درندے سے کسی بھی قسم کی بھیانک اور سنگین جرائم کی توقع کی جا سکتی ہے۔ ایک روز وہ زہرا کے گھر پر جاتا ہے۔ اس وقت زہرا گھر میں اپنی ماں کے ساتھ موجود تھی جو 8 ماہ کی حاملہ تھی۔ یامین کو اس بات کا بھی احساس ختم ہو چکا تھا کہ وہ جس کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ایک اور زندگی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنی 8 ماہ کی حاملہ بیوی اور ساس کو گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور خود وقوع سے فرار ہو گیا۔ گولیوں کی آواز سننے کے بعد جب پڑوسی موقع واردات پر آئے تو دیکھا کہ زہرا اور اس کی ماں خون میں لت پت زمین پر پڑی ہے۔ پڑوسیوں نے 15 پر کال کی اور ساتھ ہی ریسکیو اہلکاروں کو بھی فون کر دیا۔ ریسکیو کے مطابق فائرنگ کے نتیجے میں ملزم کی بیوی جہاں باق اور ساس شدید زخمی ہو گئی۔ ریسکیو نے ملزم کی ساس کو تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال ملتان منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم یامین کی بیوی کچھ عرصے سے روٹ کر میکے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی کو منانے میں ناکامی پر ملزم نے اپنی ساس اور بیوی پر فائرنگ کر کے اس کی جان ہی لے لی۔ واقعے کے بعد ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ خان گڑھ میں درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا تھا کہ وہ ملزم کو قرار واقعی سزا دلوائے گی۔ ہمارے ہاں شادی کے حوالے سے 2 ٹرینڈ جو ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے وہ اپنے بچوں کی شادیاں اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ ارینج کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ٹرینڈ ہے کہ بچے خود جو ہیں وہ اپنی شادی کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پسند کی شادی کرنی ہے اور فلاں جگہ پہ شادی کرنی ہے۔ اور عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ارینج میرج ہوتی ہے، جو پیرنٹس کی مرضی سے ہوتی ہے، وہ میرج کامیاب ہوتی ہیں، وہ شادیاں کامیاب ہوتی ہیں، اور جو لو میرج ہوتی ہیں اس میں اکثریت ایسے واقعات سامنے آتے ہیں کہ جو کامیاب نہیں ہوتی ہیں، اور ایون یہاں تک کہ اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ وہاں پہ اموات بھی ہو جاتی ہیں۔ اور ایسا ہی ایک دلخراش واقعہ جو ہے مظفر گڑھ کے ایریے میں بھی پیش آیا۔ مظفر گڑھ کا وہ علاقہ جو ایک دور دراز علاقہ ہے، اور وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ یامین اپنی پسند کی شادی زہرا بی بی کے ساتھ کرتا ہے،
اور 2 سال کے بعد ان کے اختلافات آپس میں شروع ہو جاتے ہیں، اور اختلافات اس قدر شدت اختیار کرتے ہیں کہ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور جو بیوی ہے وہ اپنے خامد سے کہتی ہے کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے کچھ پیسے چاہیے، جس پہ ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اور بیوی ناراض ہو کر اپنی والدہ کو فون کرتی ہے کہ اب بس ہو گئی ہے، اب تعلقات مزید نہیں رکھے جا سکتے، آپ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ والدہ اپنی بیٹی کو جب لے کے جاتی ہے، اس کے بعد خامد کوشش کرتا ہے کہ معاملہ جو ہے افہام و تفہیم سے حل ہو جائے، لیکن وہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل نہیں ہوتا، چونکہ چیزیں بہت آگے نکل چکی ہوتی ہیں، معاملہ نو ریٹرن پہ چلا جاتا ہے، جس کے بعد پھر خامد جو ہے وہ غصے میں آتا ہے اور فیل کرتا ہے کہ میری بے عزتی ہوئی ہے، اور گھر پہ جا کے اندھا دھند فائرنگ کرتا ہے، جس سے اس کی بیوی جو 8 ماہ کی حاملہ ہوتی ہے وہ تو ہلاک ہو جاتی ہے، جبکہ اس کی ساس جو ہے شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ دونوں کو ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پولیس جو ہے وہ کارروائی کو آگے بڑھاتی ہے۔ تاہم ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ملزم جو ہیں وہ فائدہ لے جاتے ہیں، پراسیکیوشن میں فائدہ لیتے ہیں، وہ ضمنیز میں فائدہ لیتے ہیں، گواہوں کی پیشی کے حوالے سے فائدہ لیتے ہیں، اور کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ رہا ہو کر جو ہے پھر وہ منظر عام پہ آ جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اگر اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کر لیں تو صورتحال خاصی بہتر ہو سکتی ہے۔ صرف برداشت پیدا کرنے سے ہی ہمارے معاشرے کا امن اور چین لوٹ سکتا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا اہم ترین رشتہ ہے، اور یہ رشتہ جتنا مضبوط ہے اتنا ہی نازک بھی ہے۔ اکثر اوقات اس رشتے میں کچھ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں مل بیٹھ کر ہی حل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہ ہو۔ لیکن عدم برداشت کی وجہ سے کچھ لوگ انہی اختلافات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور پھر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، جن سے اس پاک رشتے میں دوریاں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ان رشتوں میں اختلافات اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ پھر ان کا نتیجہ گھرانے کی تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ تو ناظرین، یہ تھی اس ہفتے کی جرم کہانی۔ جرائم کی یہ تمام بھیانک داستانیں ہمارے لیے نشان عبرت ہے۔ یاد رکھیے گا، انسانیت، قانون، اخلاقیات، ہمدردی اور احترام کا دامن تھام کر ہی ایسے جرائم سے خود کو اور اپنے معاشرے کو محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ اگلے ہفتے جرم کہانی میں حاضر ہوں گے جرم کی کچھ نئی داستانوں کے ساتھ۔ تو دیکھتے رہیے ABN، اور تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔